Bismillahirrahmanirrahim. So once again, welcome to all of you to this video tutorial in which I will discuss from the section 6 to the onward the West Pakistan Shops and Establishment Ordinance 1969. As I have already studied and explained the West Pakistan Shops and Establishment Ordinance, the definition section, and also from the section 1 to 5. Now I will start from the section 6 and its onward. So let's proceed toward that. And in my previous video, I already discussed about that what is the definition of the shops and what is the establishment. Then there were two types of the establishment. One was the commercial establishment and the other one was the industrial establishment, and then some other definition like the permanent employee, temporary employee, the day, week, etc. definition. I have already discussed and explained all these terms in my previous video. So in this video tutorial, I will discuss from the section 6 and the onward different sections of this ordinance. I have already studied and thought about the that what is the difference between the ordinance, rules, bill, and the act in my previous video from the in which I have already studied the section 1 to the 5. So in this video tutorial, I will start from the section 6. So let's proceed toward that. So this was now the section 6 and was titled as the weekly holidays and establishment. So a simple mean अगर हम जो है इसे डिस्कस करें तो सिंपल मीन तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट में जो है एस्टेब्लिशमेंट में फिर जो है डिफरेंट चीज़ें आती है, उसमें जो है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट भी आती है एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट भी आती है। कमर्शियल में मोस्टली जो है हमारे पास हम किसी प्रोफेशन ट्रेड या बिजनेस के जो है उसको सर्व करते हैं। इस तरह जो है अगर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जो है हम कोई चीज़ मेकिंग, अल्टरिंग, ornamenting or faking or finishing कर रहे हैं for its sale, use or disposal. And then there is the shops also. So the definition of the shop was that shop is actually एक premises होता है जिसमें आप जो है commodities या articles को sell कर रहे हो, either on the retail or on the wholesale, yeah, or either in the debit or the cash. So this was the definition of the shops. So इसका मतलब सिंपल ये है सेक्शन 6 का कि एस्टेब्लिशमेंट में जो है एटलीस्ट वीक में जो है वन हॉलीडे होना चाहिए. So now let's proceed toward the subsection 1 of the section 6 that says that the except is otherwise provided in this ordinance, every person employed in any establishment shall, in addition to the leave and holiday as may be admissible to him under section 14, 15 and 16, be allowed as holiday one day in each week. तो सिंपल मीन ये है कि जो भी आदमी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है उसे जो है एटलीस्ट वीक में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए. लेकिन इसमें जो है ऑलरेडी जो छुट्टियाँ सेक्शन 14, 15 एंड 16 में दी गई हो तो वो भी उसके साथ साथ वीक में जो है उसे एक छुट्टी देनी चाहिए. सेक्शन 14 एंड 15 को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जो है सेक्शन 14 में अगर हम वहाँ पर जाए तो this was regarding the annual leave. Section 14 is regarding the annual leave. इसका simple mean ये है section का कि at least अगर कोई बंदा जो है consecutive 12 month तक काम करे so उसे at least 14 days जो है उसे holiday देना चाहिए. इस तरह section 15 में फिर जो है casual and sick leave के हवाले से बात है कि casual leave जो है एक बंदे को per year जो है वो at least 10 casual leaves is allowed to a person at least, लेकिन एट अ टाइम वो जो है 3 दिन से ज़्यादा casual leave नहीं ले सकती. इस तरह जो है sick leave जो है वो allowed है 8 days जो है जो sick leave है वो एक बंदे को allowed है in a year. And section 16 is regarding the festival holiday. So इसका simple mean ये है कि जो भी festival holiday हो, चाहे ईद हो, होली हो या क्रिसमस हो etc. की जो holiday है, so इसका so the establishment जो है at the start of the year
या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जो है ये जो हॉलीडेज है रिगार्डिंग द फेस्टिवल्स, वो चाहे ईद हो, होली हो, या जो है क्रिसमस हो, रिगार्डिंग दिस ये हॉलीडे वो जो है एक स्पेसिफिक एक गजट के थ्रू जो है वो डिफाइन करेगी कि इस दिन पर जो है ये हॉलीडे होगी। सो जिस तरह हमने सेक्शन 14, 15 एंड 16 को डिस्कस किया कि नाउ वी कम्स टुवर्ड अगेन टू आवर सेक्शन 6 दैट सेज दैट एस्टेब्लिशमेंट में जो है एक बंदे को वीक में एक छुट्टी देनी चाहिए। सब सेक्शन 2 में फिर ये है कि नो रिडक्शन ऑन अमाउंट। तो सिंपल मतलब ये है कि जो छुट्टी जिस दिन पर होगी वीक में एक एम्प्लॉय की, सो उससे फिर जो है कोई डिडक्शन नहीं होगी उसकी सैलरी से। सब सेक्शन 3 में फिर ये है कि एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ऑन डेली वेजेस। अगर एम्प्लॉय जो है इसमें फिर फर्दर एलाबोरेट किया गया है कि आपने एक जो है एक बंदा अपॉइंट किया हो, वो डेली वेजेस पर है या वो पीस रेट बेसिस पर जो है वो काम कर रहे हैं। सो अगर वो डेली बेसिस पर काम कर रहा है डेली वेजेस पर, सो जिस तरह अदर डेज पर उसकी जितनी वेजेस बनती है, सो हॉलीडेज पर भी उसे आप वो वेजेस दोगे। इस तरह जो है अगर वो पीस रेट पर पीस रेट जो है वो उस पर काम कर रहा है। पीस रेट का सिंपल मतलब ये है कि जनरली अगर हम डिस्कस करें कि एक बंदा है वो एक दिन में कितने जो है एक स्वेटर बना रहा है, इसी तरह जो है एक अगर हम फैक्ट्रीज में जाए कि एक बंदा है जो है कितने ब्रिक्स बना रहा है, उस ब्रिक्स के नंबर के हवाले से फिर हम उसे पे करते हैं। सपोज वो 500 ब्रिक एट अ टाइम एंड वन डे बना रहा है, सो उसको फिर जो है उसके मुताबिक जो है ऑन द नंबर ऑफ द ब्रिक उसे जो है फिर हम पेमेंट देंगे। सो सिंपल मीन सब सेक्शन 3 का ये है कि जो डेली वेजेस पर काम कर रहा हो, सो उसे जो है वो वही पैसे देने चाहिए जो कि नॉर्मल डेज पर वो लेता है एक डेली वेजेस का। और अगर वो पीस रेट पर काम कर रहा है, सो उसे जो है पीस रेट के हवाले से जो है पैसे आप। So the subsection 4 is omitted. Now let's proceed toward the subsection 5, that is regarding that the choice of the close day will be in the power of the employer. लेकिन employer जो है further जो है एक specific authority जो है उससे at least जो है ये application के through जो है the setting of the establishment या the application of the provision of this section। तो सिंपल मीन ये है कि जो हॉलीडे आप दोगे वीक में वन हॉलीडे, सो ये जो पावर है ये एम्प्लॉयर के पास है कि वो किस डे पर जो है वो एक एम्प्लॉय को जो है छुट्टी देता है वीक में वन छुट्टी देता है। लेकिन वो फर्दर जो है ये परमिशन देगी एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी से। इसी तरह जो है सब सेक्शन 6 में ये है कि एन एम्प्लॉयर हु इज इंटीमेटेड हिज चॉइस ऑफ क्लोज डे। अगर एक एम्प्लॉयर ने जो है अपनी क्लोज डे के हवाले से अपनी चॉइस जो है वो बताई है कि सपोज फिर जो है जो वेस्ट पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1969 है, इसमें दी गई है कि आप या तो संडे या जो है फ्राइडे पर आप जो है छुट्टी दोगे एक एम्प्लॉय को। सो इसी तरह जो है ये चॉइस किसके पास है, ये एम्प्लॉयर के पास है कि वो किस दिन पर जो है एक एम्प्लॉय को जो है छुट्टी देता है। देन शैल नॉट चेंज द क्लोज डे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट विदाउट द अप्रूवल। मीन अप्रूवल के बगैर जो है वो क्लोज डे की जो चेंजेस है वो नहीं कर सकता। तो सब सेक्शन 6 के सिंपल मीन अगर हम डिस्कस करें तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट में जो है एटलीस्ट वो वीक में वन छुट्टी होनी चाहिए। इसी तरह जो है ये पावर एम्प्लॉयर के पास है, that the employer can after approval from the authority they can then give one holiday to the employee in weeks. So this was regarding the section 6. Now let's proceed toward the section 7. So section 7 is regarding the opening and closing hour of establishment. तो इसका सिंपल मीन ये है कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट रात के जो 8 बजे उसके बाद नहीं खुलेगी। अगर कोई एक्टिविटीज़ है या एक बंदा जो है ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है और वो कोई चीज़ ले रहा है, सो विद इन 30 मिनट्स जो है वो उस काम को जो है एटलीस्ट मीन्स इसका सिंपल मीन ये है कि 8:30 तक उसे रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर कोई बंदा एस्टेब्लिशमेंट में बैठा है तो उसे जो है वो सर्व करे। an establishment 30 minutes immediately following such hour। सो इसी तरह जो है फिर ये भी दिया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट फिक्स कर सकता है एक अदर टाइम भी जिसके बाद जो है कोई भी एस्टेब्लिशमेंट
उस स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद ओपन नहीं होगी। सब सेक्शन 2 में फिर ये है कि एवरी एम्प्लॉयर जो है वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट में जो है ओपनिंग और क्लोजिंग और जो है वो एक प्रोमिनेंट प्लेस पर लगा दी है कि हम we will serve the customer from this time. Opening and the closing hours should be properly displayed in the premises. And then in the subsection 3, it is given that the no employee should be required or permitted to work continuously. कोई भी बंदा जो है एक एस्टेब्लिशमेंट में अगर वो एडल्ट है तो एटलीस्ट कंटिन्यूसली 6 आवर तक काम वो नहीं कर सकता। एटलीस्ट आप उसको जो है 1 आवर जो है इंटरवल पर रेस्ट नहीं देते। और अगर वो बंदा जो है यंग पर्सन है तो वो 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता अनटिल आपने उसे जो है 1 आवर का इंटरवल पर रेस्ट दिया गया हो। सब सेक्शन 4 में फिर ये है कि वोमेन के हवाले से बात की गई है और यंग पर्सन के हवाले से कि कोई भी यंग पर्सन और वोमेन जो है वो 9 AM to 7 PM के जो बीच है इसके बीच वो काम कर सके। इसके अलावा जो है नो वोमेन एंड the young person can work in the establishment after this specific time interval. And then in the subsection 8 it is given that the daily, weekly, hour and overtime. So simple mean इसका ये है कि जो एडल्ट है वो एक एस्टेब्लिशमेंट में 9 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकता इन वन डे। और वीकली कितने बनते हैं अगर वो 9 आवर काम करता है डेली, सो दैट विल बी दी 48 आवर इन अ वीक। इसी तरह जो है यंग पर्सन जो है वो डेली 7 आवर से 7 आवर तक जो है वो काम कर सकता है। और वीकली कितने बनते हैं ये 42 आवर्स बनते हैं। इस तरह फिर ये दे दिया है ओवर टाइम के हवाले से कि अगर एक बंदा जो है इन अ डे 9 आवर से ज़्यादा काम कर रहा है और 48 आवर इन अ वीक, और यंग पर्सन जो है 7 आवर in a daily or the 42 hour in a weekly, so at least in such a manner जो है अरेंज होनी चाहिए कि इन केस ऑफ द एडल्ट ये जो टाइम इंटरवल है या ये जो ओवर टाइम है ये 624 के 624 आवर से जो है इन ईयर ये एक्सीड न की जाए। इस तरह और यंग पर्सन के हवाले से भी ये कि वो इसकी जो डेली और वीकली और जो है और ओवर टाइम है वो इस तरह अरेंज की जाए कि वो 468 या 468 आवर्स इन ईयर जो है वो इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं की जाए। तो सिंपल मीनिंग ये है कि एडल्ट जो है 9 to 48 और काम कर सकता है डेली एंड वीकली, और यंग पर्सन जो है वो 7 to 42 आवर काम कर सकता है। 7 to 42 आवर डेली एंड वीकली काम कर सकता है एस्टेब्लिशमेंट में। और अगर वो ओवर टाइम कर रहा है सो वो एटलीस्ट इन सच मैन अरेंज की जाए कि इन केस ऑफ द एडल्ट ये 624 आवर से ज़्यादा एक्सीड नहीं की जाए, और इन केस ऑफ द यंग पर्सन ये 468 आवर्स इन ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं की जाए। इस तरह सेक्शन 9 में फिर ये दिया गया है कि ओवर टाइम वेजेस के हवाले से क्या है। सो व्हेन एन एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू वर्क ओवर टाइम इन एनी एस्टेब्लिशमेंट एज प्रोवाइडेड इन द प्रोविजन टू सेक्शन 8, जिस तरह सेक्शन 8 में दिया गया है कि अगर एम्प्लॉय है वो ओवर टाइम करता है जो कि स्पेसिफाइड टाइम लिमिट हमने डिस्कस किया कि 948 एंड 742, सो उसके जो है ओवर टाइम के वेजेस वो जो कि ऑर्डिनरी वेजेस है उसके बेस पर हम जो है उसके डबल रेट पर जो है उसे उस ओवर टाइम के पैसे या उस ओवर टाइम के जो पेमेंट है वो आप डबल आप दी ऑर्डिनरी वेजेस के जो है उसे पे करेंगे। इस तरह जो है फिर ये है कि पीस रेट पर जो बंदा काम कर रहा है उसे ये ओवर टाइम के पैसे नहीं मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली। एंड देन स्प्रेड ओवर का मतलब ये है कि जिस तरह पहले मैंने डिस्कस किया एक सेक्शन में वहाँ पर भी था कि एटलीस्ट अब जो है एक बंदा जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक एडल्ट जो है 9 और डेली काम कर सकता है और वीकली 48, इस तरह जो है यंग पर्सन जो है वो 7 और डेली एंड 42 और वीकली काम कर सकता है। सो और फिर जो है आप एटलीस्ट जहाँ पर एक सेक्शन में था कि कंटिन्यूसली अगर एक एडल्ट काम कर रहा है 5 आवर तक, सो एटलीस्ट उसे आप 1 आवर की जो है उसे ब्रेक देंगे। और फिर और अगर एक बंदा है वो कंटिन्यूसली यंग पर्सन है वो एटलीस्ट 3 आवर से ज़्यादा काम कर रहे हैं, सो एटलीस्ट आप उसे 1 आवर की ब्रेक दोगे फॉर द इंटरवल ऑफ द रेस्ट। सो फिर इन सारी जो डेली वीकली आवर है या सपोज उसकी जो वर्किंग कंडीशन है और जो रेस्ट है, ये सारे को इन सब चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें सो दैट विल बी कॉल्ड एज द स्प्रेड ओवर।
So the spread over for the adult will be the not more than the 12 hour, and for the young person that should be not more than the 9 hour. इस तरह फिर ये दिया गया है provided that the total period of work worked out in case of an adult worker shall not exceed from the 60 hour in a week, and a young person के केस में जो है ये at least 54 hour in a week ज़्यादा नहीं की जाए. तो सिंपल मीन सेक्शन 10 का ये है कि एडल्ट जो है उसकी स्प्रेड ओवर कितनी है, मोर देन 12 आवर, और यंग पर्सन की मोर देन 9 आवर. इस तरह जो है, और ये एटलीस्ट इस मैनर में अरेंज की जाए कि एडल्ट जो है वो उसकी स्प्रेड ओवर एटलीस्ट वीक में, जो कि नॉर्मली वीक में कितने घंटे काम कर सकता था, वीक में जो है वो नॉर्मली जो है वो 48 आवर काम कर सकता है. उस वो जो है इन सच में हमें अरेंज करनी चाहिए कि वो 60 आवर से ज़्यादा एक्सीड नहीं की जाए, और यंग पर्सन जो है वो 42 आवर तक काम कर सकता है. वो अब इस ओवर टाइम के बाद जो है, स्प्रेड ओवर के बाद जो है वो 54 आवर से ज़्यादा एक्सीड नहीं की जाए. सो नाउ इन सेक्शन 11 दैट इज द रिगार्डिंग द टाइम एंड कंडीशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि एक एम्प्लॉय उसने काम किया है, सो आप स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद उसे जब पेमेंट दे दोगे, सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट पेमेंट. So every employer or his agent of the manager shall fix the period and respect of which wages to employee should be payable. तो सिंपल मीन ये है कि एम्प्लॉयर को या मैनेजर्स को जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखनी चाहिए जिसके बाद आप जो है एम्प्लॉय को पे करेंगी, और ये जो वेज पीरियड है ये इन सच ए मैनर अरेंज की जाए कि ये 1 मंथ से ज़्यादा एक्सीड न की जाए. फिर सब सेक्शन 3 में ये है कि अगर आप जो है उस बंदे को फिर पे करोगे, सो एटलीस्ट ये इन सच मैनर अरेंज की जाए कि जो बंदा है उसकी सपोज वन मंथ जो है आपने एक वेज पीरियड रखा है, और इसके बाद आप जो है एक एम्प्लॉय को पे करोगे, सो एटलीस्ट वो जो 7 वर्किंग डेज है जी, ये पीरियड कंप्लीट हो चुका होगा, और 7 डेज के ख़त्म होने से पहले जो है अगली मंथ की जो 7 डेज है वो ख़त्म होने से पहले आप जो है एम्प्लॉय को पे करोगी. इन सब सेक्शन 4 में फिर ये है कि ऑल वेजेस जो है एक लीगल टेंडर में एक मैनर पर होनी चाहिए. सब सेक्शन 5 में फिर ये है कि अगर आप एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहे हो, सो एटलीस्ट उसे जो है when the employment of any person is terminated by or on behalf of the employer, the wages and other dues earned by such person should be paid before the expiry of the second working day after the day on which his employment is terminated. तो सिंपल मीन ये है कि सपोज एक एम्प्लॉयर है वो एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर रहा है, सो उसके जो सेकंड वर्किंग डे है उसके ख़त्म होने से पहले जो है आप उसे एटलीस्ट उसकी जितनी भी पेमेंट है उसे देनी चाहिए. फिर सबसेक्शन 12 में ये है क्लेम arising out of delay in payment of wages and penalty for the malicious or the vexatious claim. So इसका सिंपल मीन ये है सेक्शन 12 का कि सपोज एक एम्प्लॉय है उसने जो है एक they demand that the employer didn't pay me well on the time. इसी तरह जो है ये जो डिमांड है ये एम्प्लॉयर भी कर सकता है कि एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय है वो मुझसे जो है मेलिशियस और वेक्शियस डिमांड कर रहे हैं, although they have didn't earn the payment regarding their time and regarding their daily and weekly hours. सो सब सेक्शन 1 ये कह रही है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट्स जो है वो एक अथॉरिटी अपॉइंट कर सकती है जिसको जो है ये सारे केसेस वो उसको जो है अपील की जाएगी. सब सेक्शन 2 में फिर ये अगर कोई बंदा एक एम्प्लॉय है विद कंट्री टू द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की वेजेस जो है वो डिलेड और विदहेल्ड की गई हो, सो विद इन 4 मंथ जो है वो अप्लाई कर सकता है सब सेक्शन 1 की जो अथॉरिटी है उसको. इस तरह जो है फिर ये जो टाइम लिमिट्स है जिस तरह मैंने बताया कि ये 4 मंथ के अंदर अंदर जो है वो एक अथॉरिटी को अपील कर सकती है कि मुझे जो है मेरे पेमेंट के जो कि मेरे जो वेजेस है उसके पैसे नहीं मिले, सो विद इन 4 मंथ ये एक्चुअली जो है वो एक अपील कर सकती है उस सब सेक्शन 1 की अथॉरिटी को.
इस तरह जो है ये लिमिट जो है ये 6 मंथ तक भी एक्सीड कर सकती है कि अगर अथॉरिटी जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। सब सेक्शन 3 में फिर ये है कि सिंपली अगर हम डिस्कस करें कि एक एम्प्लॉयर ने जो है विदाउट विदाउट प्रॉपर रीज़न जो है वो एक एम्प्लॉय के पैसे जो है वो अपने पास रखे हो, सो उसको जो है उस पर पेनल्टी 50 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी या कोई और फाइन्स जो कि अथॉरिटी ने फिक्स की हो। लेकिन ये क्लेम जो है जो एम्प्लॉय की तरफ से की गई हो, ये एटलीस्ट इन सारी चीज़ों की तरफ से सर जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई एटलीस्ट because of this thing that claim should not be due to these different reasons. One of the reason is the bona fide error due to bona fide error to the amount payable to the employee. The second one is the कोई इमरजेंसी है या उसकी वजह से जो है एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे सका, या इसमें जो है क्लास सी में फिर ये है कि इसमें एक एम्प्लॉय को पैसे नहीं मिले, उसमें जो है मेन फॉल्ट किसका है, एम्प्लॉय का है। सब सेक्शन 4 में फिर ये है कि द अथॉरिटी में डायरेक्ट दैट अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज बी पेड टू द एम्प्लॉयर। अगर वो जो कि इस सेक्शन के टाइटल में भी है कि अगर एक एम्प्लॉय ने वेक्शियस और द मिलिशियस क्लेम किया है, सो फिर अथॉरिटी ये कर सकती है कि उस एम्प्लॉय पर जो है उसे भी वो फाइन कर सकती है 50 रुपीज। वो पे करेगा फिर किसको, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय विल पे टू दी एम्प्लॉयर। सो फिर इसमें सब सेक्शन 5 में फिर डिफरेंट चीज़ें दी गई है कि an amount directed to the Fed under this section may be recovered। और ये अमाउंट जो है ये रिकवर कौन करेगा, ये स्पेशली अथॉरिटी, ये जो है मेनली जो है जो कि मजिस्ट्रेट है वो ये फी जो है कलेक्ट करेगा, वो चाहे एम्प्लॉयर से हो या एम्प्लॉय से हो। और कितने पैसे थे, 50 रुपीज़। सबसेक्शन 6 में फिर ये है कि an appeal against a direction made by the authority under subsection 3 और subsection 4। अगर सेक्शन 3 और 4 में जो कि एक अथॉरिटी ने एक डिसीजन लिया हो, सो उसको जो अपील आप करोगे वो may be referred to the district court within 30 days of the date on which the direction was made। सो फिर सब सेक्शन 3 और 4 में जो कि सब सेक्शन 3 में ये था कि एम्प्लॉयर जो है वो एक एम्प्लॉय को पे करेगा और इसके साथ साथ 50 रुपीज़ उस पर फाइन होगा। सब सेक्शन 4 में फिर ये था कि एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर को पे करेगा और 50 रुपीज़ उस पर फाइन होगा। सो सब सेक्शन 3 और 4 में जो डायरेक्शन दी गई हो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो किसको, विद इन 30 डेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आप जो है अपील कर सकते हो। सब सेक्शन 7 में फिर ये है देयर इज नो अपील, अगर कोई अपील नहीं थी सब सेक्शन 3 और 4 के हवाले से, सो जो फाइनल जो डिसीजन दी गई हो वो फाइनल डिसीजन होगी। 8 में फिर ये डिफरेंट और चीज़ें हैं। an authority appointed under subsection 1, वो जो है subsection 1 के अंडर अथॉरिटी जो अपॉइंट की गई हो जिसको आप अपील कर सकते हो for the purpose of determining any matters in subsection 3 और subsection 4, उसकी जो है वो उसके पास कौन से पावर होंगे, so they will have the power of the civil court under the code of criminal procedure 1908। so simple meaning ये है कि जो subsection 1 की जो अथॉरिटी है उसके पास पावर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1908 की। इसी तरह जो है bidding to a civil court for all the purpose of section 195 and chapter this of the code of criminal procedure in 1898। और वो जो अथॉरिटी होगी वो कंसिडर की जाएगी एज सेक्शन 195 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर जो है वो एक सिविल कोर्ट कंसिडर की जाएगी। फिर सेक्शन 13 में ये है कि बार ऑफ सूट्स, so no court shall entertain any suit for the recovery of wages and so far uh, as the sum so claimed। so इसका सिंपल मीन ये है कि फॉर्म द ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12। सेक्शन 12 के सबसेक्शन 2 में जो डायरेक्शन दी गई है जो कि एक फाइन लगाई गई हो फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड टू द एम्प्लॉय which is pending before the authority appointed under section 1 of the section or if an appeal under subsection 6 of their said section। तो इसका सिंपल मीन ये है कि कोई भी कोर्ट जो है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अंडर जो है एक इंक्वायरी की गई हो या जो है सब सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अंडर एक इंक्वायरी की गई हो और वो केस जो है वो पेंडिंग हो रिगार्डिंग दी सब सेक्शन 1 में जो अथॉरिटी दी गई हो उसके
उसके सामने जो है वो केस पेंडिंग हो, सो कोई भी कोर्ट जो है वो केस एंटरटेन नहीं कर सकता। इस तरह जो है फिर ये है क्लास बी में कि has formed the subject of a direction under subsection 3 of section 12। सो सिंपल मीन सेक्शन 13 का ये है बार ऑफ सूट का कि कोई भी कोर्ट जो है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अंडर एक इंक्वायरी चल रही हो और वो सेक्शन सब सेक्शन 1 में जो अथॉरिटी अपॉइंट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह हमने बताया कि वो फाइन कोर्ट कलेक्ट करेगा, फिर वो फाइन कलेक्ट करेगा मजिस्ट्रेट, और उसके पास जो सब सेक्शन 1 की अथॉरिटी उसके पास कौन से पावर है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के पावर है। सो सब सेक्शन 1 के सामने जो इंक्वायरी चल रही है उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट जो है वो केस एंटरटेन नहीं कर सकता, और दी सब सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अंडर जो इंक्वायरी चल रही हो। जिस तरह के मैंने बताया कि सब सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में फिर क्या था, ये था कि एम्प्लॉयर पे करेगा किसको, एम्प्लॉय को, वाइल सब सेक्शन 3 में ये था कि रिवर्स मेथड में होगा, एम्प्लॉय पे करेगा किसको, ड्यू टू द malicious और द vexatious क्लेम की वजह से फिर एम्प्लॉय पे करेगा एम्प्लॉयर को। Now let's move toward the important section of this ordinance, that is the annual leave. So इसमें सिंपल ये है कि every establishment में जो है अगर कोई बंदा continuously for 12 month तक काम करता है, for a period of 12 months, so at least उसे आप जो है 14 days annual holiday दोगे। Subsection 2 में फिर ये है कि if an employee does not in any period of 12 month avail, अगर एम्प्लॉय ने जो है ये सारे 14 डेज की जो एनुअल हॉलीडे ये अवेल नहीं की, सो ये प्रोसीड होगी नेक्स्ट ईयर के जो हॉलीडे है उसमें फिर ये प्रोसीड होगी, लेकिन ये अमाउंट एटलीस्ट 30 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ये एकामुलेट होगी और फिर जो है ये ट्रांसफ़र होगी और शिफ्ट होगी जो अगले साल उसकी जो छुट्टियाँ हैं एनुअल 14 डेज है ये उसमें ट्रांसफ़र होगी। सपोज एक बंदे ने जो है 14 डेज पर ईयर जो है उसकी एनुअल हॉलीडे उसने सपोज 6 अवेल की और बाकी अवेल नहीं की, सो बाकी जो है ये जो नेक्स्ट ईयर की जो छुट्टियाँ है उसमें जो है ट्रांसफ़र और शिफ्ट होगी। फिर क्लास बी में ये है कि जो छुट्टियाँ हैं एनुअल हॉलीडे है उसकी जो पेमेंट है वो फुल वेजेस होगी फॉर द लीव। सब सेक्शन 3 में फिर ये दिया गया है अगर एक एम्प्लॉय ने जो है फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग व्हिच एन एम्प्लॉय हैज़ बीन इन कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट द पीरियड्स ड्यूरिंग व्हिच ही वाज ऑन लीव। तो इसमें फिर ये है कि इस जो कंटिन्यूसली जो हमने बताया कि एक बंदा जब एक एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है फॉर द 12 मंथ, तो फिर उसे 14 डेज एटलीस्ट आप हॉलीडे दोगे फॉर दी एनुअली। सो इसमें जो है उन कंटिन्यूस वर्क में जो सेक्शन 14 सॉरी द सेक्शन 15 और 16 की जो हॉलीडे है वो भी इंक्लूडेड है, जो कि 15 में कैजुअल एंड सिक लीव है एंड 16 में फेस्टिवल हॉलीडेज है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द सेक्शन 14 के एक बंदे को जो है कंटिन्यूसली अगर वो 12 मंथ तक काम करता है जिसमें कि 14 और 15 और 16 की छुट्टियाँ हैं वो भी आती है वो कंटिन्यूसली, तो एटलीस्ट उसको जो है 14 डेज एनुअल हॉलीडे देनी चाहिए और वो फुल वेजेस पर होगी। इसके अलावा जो है अगर वो अवेल ना करे तो वो नेक्स्ट ईयर प्रोसीड होगी, लेकिन वो 30 डेज से एक्सीड न की जाए। सेक्शन 15 में फिर क्या है, सो सेक्शन 15 इज रिगार्डिंग द कैजुअल एंड सिक लीव। सो एवरी एम्प्लॉय जो है उसको जो है कैजुअल लीव ऑफ 10 डेज वो ले सकता है, लेकिन एट अ टाइम जो है ये कैजुअल लीव 3 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह सब सेक्शन 2 में फिर ये है कि सिक लीव के हवाले से कि एक बंदा जो है सिक लीव जो है 1 ईयर में वो 8 डेज जो है वो एटलीस्ट सिक लीव ले सकता है, और ये जिस तरह एनुअल हॉलीडे फॉरवर्ड हो रही थी मे बी कैरिड फॉरवर्ड, सो ये भी फॉरवर्ड होगी, लेकिन ये जो सिक लीव है ये एटलीस्ट सिक है सो 16, सो एटलीस्ट ये 16 डेज से एट अ टाइम जो है इंक्रीज नहीं की जाए, और एनुअल हॉलीडे कितनी टाइम के बाद जो है वो एक्सीड नहीं की जाए जो कि फॉरवर्ड हो रही थी नेक्स्ट ईयर को, वो दैट वाज दी बाय द वे व्हाट वाज द अमाउंट देयर 30 डेज से जो है वो एक्सीड नहीं की जाए। So now let's move toward the section 16. This is regarding the festival holiday. Every employee should be allowed 10 days festival holiday with full wages in a year. So simple mean ये है कि एक employee को जो है for year में जो है 10 days festival holiday देनी चाहिए। The day and date for which such festival holiday should be notified, और ये जो day होगा या date होगा
that will be notified by the employer in the beginning of the calendar year. So this was regarding the festival holiday. सिंपल मीन ये है कि एम्प्लॉयर जो है कैलेंडर ईयर के जो स्टार्ट में जो है वो जो कैलेंडर होता है उसमें स्पेसिफाई करेगा कि इस डे पर जो है और इस डेट को जो है फेस्टिवल हॉलीडे होगी और वो एटलीस्ट 10 days होनी चाहिए. 17 इज रिगार्डिंग द वेजेस ड्यूरिंग लीव और हॉलीडे. अगर डिफरेंट लीव्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए सेक्शन 14 में जो एनुअल हॉलीडे के हवाले से था, 15 में जो है कैजुअल एंड सिक लीव थी, 14 में जो एनुअल हॉलीडे दैट वाज 14 days और 15 में जो कैजुअल लीव थी वो 10 कैजुअल लीव थी और 8 जो है वो सिक लीव थी और 16 में जो फेस्टिवल हॉलीडेज थी वो 10 days थी. सो उसकी जो पेमेंट होगी वो जो पिछले 3 महीने तक जिसने एक बंदे ने एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय ने एक एस्टेब्लिशमेंट में काम किया हो, सो वो पैसे उसको उन 3 महीनों के बेस पर जो है आप दोगे. सब सेक्शन 2 में फिर ये है कि अगर एक एम्प्लॉयर ने जो है एन एम्प्लॉय who has been allowed leave under section 14, सेक्शन 14 के अंडर उसे जो है लीव आपने दी है जो कि कौन सी लीव थी, एनुअल हॉलीडेज 14 days थी, फॉर एनी पीरियड नॉट लेस देन 4 days. सो सिंपल मीन ये है कि जिस तरह मैंने पहले एक सेक्शन में कैजुअल लीव में बताया कि कैजुअल लीव एट अ टाइम एक बंदे की 10 days जो है कैजुअल लीव है, लेकिन वो एट अ टाइम 3 दिन से ज़्यादा कैजुअल लीव नहीं ले सकता. इसी तरह फिर इसमें ये दिया गया है कि एनुअल हॉलीडेज अगर एक बंदा ले रहा है जो कि पर ईयर 14 days थी, वो एट अ टाइम एवरेज जो है वो एट अ टाइम 4 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो यंग पर्सन है वो 5 दिन से एट अ टाइम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. क्या? एनुअल हॉलीडे. So section 18 is regarding the section 14, 15, 16 and 17 not apply to certain establishment. फिर इसमें ये है कि 14 to 17 जो section है ये certain establishment में applicable नहीं है इसकी provision. So the provision of the section 14 that was regarding annual holiday, 15 was regarding the casual and sick leave, 16 was festival holiday and 17 was regarding the जो payment है उसकी हवाले से था कि आप जो कि कंटिन्यूसली उसने पिछले और पहले जो प्रीसीडिंग 3 मंथ के लिए जितने पैसे उसने दिए हो उसके बेस पर जो है आप उसे पे करोगे. सो इसमें ये है फिर कि ये जो सेक्शन 14, 15, 16 एंड 17 एप्लीकेबल नहीं है किस चीज़ पर, वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस 1968 की जो सब सेक्शन 2 क्लास बी में जो एस्टेब्लिशमेंट दी गई है उस पर जो है ये 14 to 17 सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. फिर जो है 19 में ये है कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिस तरह की नॉर्मल एक प्रोसेस है कि एक एम्प्लॉयर सपोज एक एम्प्लॉय से खुश नहीं है तो वो उसे फिर जो है दैट सो द एम्प्लॉयर विल फायर द एम्प्लॉय. सो इसमें फिर उसके हवाले से कुछ कंडीशन दी गई है सेक्शन 19 में और वो ये है कि अगर फॉर टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ परमानेंट एम्प्लॉय, अगर आप जो है एक एम्प्लॉयर एक परमानेंट एम्प्लॉय है उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो टर्मिनेट कर रहा है, सो एटलीस्ट 1 month बिफोर जो है उसे आप नोटिस दोगे, वो चाहे एम्प्लॉय की तरफ से हो या एम्प्लॉयर की तरफ से हो, लेकिन शर्त इन दोनों में ये है कि ये जो है परमानेंट होनी चाहिए. सो और उसके जो है उस पैसे जो है या उसके जो वेजेस है वो 1 month के वेजेस जो है उसने पिछले 3 महीने तक जितने जितने अमाउंट पर या जितने वेजेस पर काम किया हो उसके जो है उस 1 month के पैसे आप जो है उस प्रीवियस 3 month के जो वेजेस है उसके अकॉर्डिंग दोगे. लेकिन क्या है इसमें कि आप टर्मिनेट कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 month बिफोर जो है आप नोटिस दोगे. लेकिन ये नोटिस जो है ये टेम्पररी एम्प्लॉय के लिए नहीं है, वो चाहे टेम्पररी अप्लाई वो आपने मंथली वीकली और डेली बेसिस पर अपॉइंट किया गया हो, सो उसमें जो है फिर नोटिस की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी जो है किसी को फायर कर सकते हो. लेकिन एटलीस्ट जो है फिर ये है कि इसमें फिर ये दिया गया है कि बट द सर्विस ऑफ अ टेम्पररी एम्प्लॉय शुड नॉट बी टर्मिनेटेड, कि जो टेम्पररी एम्प्लॉय है उसकी सर्विस आप टर्मिनेट नहीं करोगे किस बेस पर, एज अ पनिशमेंट अनलेस ही हैज गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सपीरियंस. सो सिंपल मीन ये है कि एटलीस्ट आप जो है एक टेम्पररी एम्प्लॉय को फायर कर रहे हो या उसे जो है उसकी टर्मिनेट कर रहे हो, सो एटलीस्ट
उसे अपॉर्चुनिटी आप हियरिंग देनी चाहिए। एज अ पनिशमेंट आप जो है उसे डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते। या वैसे बाय द वे इन लॉज को जो है कोई भी फॉलो नहीं कर रहा in this extent. Now let's proceed towards section 20. This is regarding the prohibition of employment of children. तो इसमें ये है कि जिस तरह हमने डिफिनीशन में डिस्कस किया है कि एक बंदा या एक चाइल्ड वो चाइल्ड विल दोज इंडिविजुअल जिसने जो है 14 ईयर कंप्लीट नहीं किया सो वी कंसिडर देम एज अ चाइल्ड। सो कोई भी चाइल्ड अलाउ नहीं है कि वो एक एस्टेब्लिशमेंट में काम करे। Then the 21 is regarding the contracting out any contract or agreement whether made before or after the commencement of this ordinance. Which ordinance? West Pakistan Shops and Establishment Ordinance 1969, whereby an employee relinquished any right conferred by this ordinance shall be null and void insofar as to perforce to deprive him of such right. तो सिंपल मीन सेक्शन 21 का ये है कि इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले या इसके बाद जो है एक एम्प्लॉय को जो है उसे कुछ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हुई हो जो कि इस ऑर्डिनेंस की जो प्रोविजन है इसकी वायलेशन की गई सो दैट जो भी एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है वो नल एंड वाइड कंसिडर की जाएगी। मीन इसकी कोई वीडियो नहीं होगी। सेक्शन 22 में जो है रिगार्डिंग द गार्डिंग ऑफ द मशीनरी, जिस तरह के एक एस्टेब्लिशमेंट में जिस तरह हमने बताया कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जो है आप चीज़ मेकिंग अल्टरिंग पैकिंग अर्नामेंटिंग एक्सेट्रा कर रहे हो। सो इन दैट सिचुएशन अ लॉट ऑफ द मशीनरी आर यूज्ड। सो एटलीस्ट जो है इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट जो में जो है वो ऑल जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकली मशीनरी है उसकी प्रॉपर प्रिस्क्राइब मैनर में जो है उसकी गार्डिंग एंड फेंसिंग होनी चाहिए। By the way, this was also given in the Factories Act 1934 as well. इसमें फिर जो है further explanation दी गई है। इसके अलावा जो वेस्ट पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रूल्स है 1969 इसमें भी आई थिंक रूल 6 और 5 जो है वो रिगार्डिंग द फेंसिंग एंड गार्डिंग ऑफ द मशीनरी है। So now let's proceed toward the section 23. So this is regarding the maintenance of record and registers. Every employer shall for the purpose of this ordinance. इस ऑर्डिनेंस के पर्पस के लिए एवरी एम्प्लॉयर जो है अपनी एस्टेब्लिशमेंट में जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स और रजिस्टर है वो मेंटेन करेगा। इस तरह सेक्शन 24 में जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। इसमें फिर ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन फी फॉर रजिस्ट्रेशन कि आप जो है कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है लेकिन वन मैन शॉप के अलावा वो आप उसे जो है रजिस्टर करोगे। सब सेक्शन 1 में ये है वन मैन शॉप जो है इसका मतलब ये है सिंपल मीन कि एक बंदा है जो कि खुद जो है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वन मैन शॉप का मतलब क्या होगा कि एक शॉप जो है वो या तो खुद एम्प्लॉयर जो है चला रहा है या उसकी फैमिली जो है इंगेज करे लेकिन उसमें वर्कर इन्वॉल्व नहीं है या जो है कोई भी एम्प्लॉयर है नहीं कोई भी एम्प्लॉय है नहीं और वो जो है वो तो या एक एम्प्लॉयर खुद चला रहा है या उसकी कोई फैमिली मेम्बर्स है वो चला रहा है। सो वन मैन शॉप के अलावा जो जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट होगी वो डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर जो एरिया का होगा उसके साथ जो है आपने जो है रजिस्टर करनी होगी। सब सेक्शन 2 में फिर ये दिया गया है कि एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ये आपने बनाना है किस फॉर्म में, फॉर्म एम आपने फिल करना है और फॉर्म बी में जो है आपको एक सर्टिफिकेट दी जाएगी। लेकिन फिर जो फीस है उसकी वो अकॉर्डिंग टू दी वर्कर जो वर्कर की जितनी नंबर है उसके हवाले से फिर इसकी फीस है। दैट इज़ अगर वर्कर फ्रॉम 1 to 5 है तो 2 rupees will be the application form, and then worker अगर 6 to 12 है तो then 3 rupees and 11 to 20 है so 5 rupees, and अगर वर्कर उस एस्टेब्लिशमेंट में 20 से ज़्यादा है so that will be the 10 rupees. Subsection 3 में फिर ये है कि an application for registration should be made existing in this ordinance के within 3 months thereof कि एक एस्टेब्लिशमेंट में जो है एक एस्टेब्लिशमेंट है जो कि इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले मौजूद है सो वो खुद को रजिस्टर करेगी विद इन 3 months। और अगर एक एस्टेब्लिशमेंट है वो इस ऑर्डिनेंस के आने से बाद में जो है बनाई गई है सो वो एस्टेब्लिशमेंट खुद को विद इन 2 months रजिस्टर करेगी विद द डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द एरिया। सब सेक्शन 4 में फिर ये दिया गया है कि डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर है उसको जो एप्लीकेशन आती है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन सो वो फिर अगर और सब चीज़ें जो है वो वैलिड है सो वो जो है फॉर्म बी में जो है वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकती है टू द एम्प्लॉयर इन फॉर्म सी।
तो सिंपल मीन ये है कि आप जो है फॉर्म ए को फिल करोगे रिगार्डिंग दी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट में, और फिर एक स्पेसिफाइड पैसे भी आप जो है रिगार्डिंग दी नंबर ऑफ वर्कर जो है आप दोगे टू द डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर्स। फिर जो है फॉर्म बी एक रजिस्टर होगी जो कि डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर के साथ होगी, और फॉर्म सी में आपको जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सब सेक्शन 5 में फिर ये है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो जो है फॉर द 2 ईयर जो है वो वैलिड होगी, और ये प्रोमिनेंट प्लेस में जो है ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस सर्टिफिकेट को जो है एक प्रोमिनेंट प्लेस पर डिस्प्ले करें। सब सेक्शन 25 में फिर ये है कि जो कि कॉग्नाइजेज ऑफ एन ऑफेंस, अदर सेक्शन में ये अदर जो डिफरेंट एक्ट्स है या रूल है उसमें एक सेक्शन होता है कॉग्नाइजेज ऑफेंस के एक जुर्म की जो है उसकी उसे देखना कि आए ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स है नहीं है। सो उसे देखने के लिए कुछ बंदे जो है लोग या डिफरेंट जो अथॉरिटीज़ है वो हायर कर रहे होते हैं। सो इस वेस्ट पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969 में जो कॉग्नाइजेज एन ऑफेंस वाली जो अथॉरिटी है, दैट इज द डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर एंड द इंस्पेक्टर। सो सेक्शन 25 में फिर ये है सब सेक्शन 1 में कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट जो अपॉइंट कर सकती है चीफ इंस्पेक्टर फॉर द होल प्रोविंस, द डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर फॉर द स्पेसिफाइड एरिया एंड अदर पर्सन जो कि फिट होगी एज ए इंस्पेक्टर। इसके अलावा जो है सब सेक्शन 2 में फिर ये है कि डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर जो है ये सुपरवाइज करेगी द वर्क ऑफ द इंस्पेक्टर में एक्सरसाइज, और ये जो डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर है और चीफ इंस्पेक्टर है उसके पावर उसके साथ जो है उसके पास इंस्पेक्टर की पावर भी होती है। सब सेक्शन 3 में फिर ये है कि जो चीफ इंस्पेक्टर और डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर या जो इंस्पेक्टर है ये पाकिस्तान पेनल कोड सेक्शन 21 के अंडर जो है ये एक पब्लिक सर्वेंट कंसिडर की जाएगी। तो सिंपल मीन सेक्शन 25 का ये था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी इन ऑफिशियल गजट जिसमें जो है वो जो बंदे एलिजिबल हैं जिसकी क्वालिफिकेशन है उसको जो है चीफ इंस्पेक्टर पूरे प्रोविंस के लिए, फिर जो है डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर एंड देन द इंस्पेक्टर। और ये जो डिप्टी चीफ एंड चीफ इंस्पेक्टर ये सुपरवाइज करेगी इंस्पेक्टर के वर्क को, और उसके पास जो है इंस्पेक्टर की पावर भी होती है। सब सेक्शन 3 में फिर अदर चीज़ें हैं। Now let's proceed toward the section 26, that what should be the power of inspector. So इसमें ये है कि inspector appointed under section 25 के अंडर जो inspector appoint होते हैं वो चाहे so for the purpose of this ordinance उसकी जो specified local limit है एक इंस्पेक्टर की वो reasonable ground पर जो है एंटर कर सकती है at all reasonable time enter into such place, एक specified place में जो है वो एंटर कर सकती है जिसमें जो उसे रीज़न होती है या बिलीव उसकी होती है एक एस्टेब्लिशमेंट कि वो इस ऑर्डिनेंस की जो प्रोविजन है इसकी वायलेशन कर रही है। सो वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में एंटर कर सकती है, एग्जामिनेशन कर सकता है, इवन जो है रिकॉर्ड रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है, और फर्दर जो भी एक्सप्लेनेशन है वो कॉल कर सकता है रिगार्डिंग द इन रिगार्ड रजिस्टर्स और द डॉक्यूमेंट्स। सो दिस ऑल आर द पावर ऑफ द इंस्पेक्टर कि वो किसी भी जगह पर जाकर एंटर कर सकता है, और जो कि रजिस्टर रिकॉर्ड्स एटसेट्रा है जिस तरह के एक सेक्शन में हमने डिस्कस किया कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस्टेब्लिशमेंट में डिफरेंट रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करे। फिर जब इंस्पेक्टर आएगा तो वो जो है उस रिकॉर्ड्स को जो है फिर इसकी एग्जामिनेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा एटसेट्रा रिगार्डिंग दी। सपोज अगर हम डिस्कस करें रिगार्डिंग दी डेली एंड वीकली आवर्स और दी ओवर टाइम के हवाले से जो बातें हो रही थी, इसके अलावा जो वीकली हॉलीडे है वो उसके हवाले से कि एटलीस्ट वीक में 1 डे जो है एक आप छुट्टी दोगे एम्प्लॉय को। इस तरह जो है एनुअल हॉलीडे के हवाले से जो कि 14 डेज एनुअल हॉलीडेज थी, कैजुअल जो कि 10 डेज थी, एट अ टाइम 3 दिन से ज़्यादा आप अवेल नहीं कर सकती। इस तरह जो है सिक लीव जो कि 8 डेज सिक लीव थी, और देन दी फेस्टिवल हॉलीडे जो कि 10 डेज थी। सो द इंस्पेक्टर कैन एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट ऑल दीज थिंग्स regarding the provision of this ordinance,
1969. Now let's proceed toward the penalties. अगर कोई बंदा जो है वायलेशन कर रहा है इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की, so what should be the penalties for that? So सेक्शन 27 में ये दी गई है। अगर एक एम्प्लॉयर है वो जो है सबसेक्शन 1 में सिंपल ये है कि वो रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स या कोई और डॉक्यूमेंट्स है वो फाइल्स सेंड और सीज ऑन टू बी सेंट टू इंस्पेक्टर, वो फाइल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है इंस्पेक्टर को। सो फिर जो है उस पर 50 रुपीज़ फाइन होगी एंड जो कि 50 to 250 रुपीज़ उस पर जो है फाइन होगी अगर एक बंदा या एक एम्प्लॉयर है वो इंस्पेक्टर को फॉल्स डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स और रजिस्टर प्रोवाइड करता है, सो दैट विल बी punished for a fine which may extend from the 50 to 50 rupees. और सबसेक्शन 2 में फिर ये है कि सेक्शन 6, 7, 19 एंड 20 की अगर कोई वायलेशन कर रहा है और कंट्रावेंशन कर रहा है, सेक्शन 6 में जो है बाय द वे इसमें जो है सेक्शन 6 में अगर हम देखेंगे सेक्शन 6 में क्या था। So section 6 was regarding the weekly holiday in establishment, 7 was regarding the opening and closing hour. इस तरह जो है फिर section 6 was regarding the weekly holiday, 7 is regarding the opening and closing hour of establishment, और फिर जो 19 और 20 है जिसमें जो termination of employment की बात हो रही थी, इस 19 में termination of employment और 20 में जो है prohibition of employment of children है। अगर कोई इन सेक्शन 6, 7 और 19 to 20 की वायलेशन कर रहा है, 6 में जो है वीकली हॉलीडे है, 7 में जो है ओपनिंग क्लोजिंग आवर है, 19 में जो है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कि 1 मंथ जो है परमानेंट एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर है तो 1 मंथ बिफोर जो है नोटिस देनी चाहिए, और 20 में जो है चाइल्ड की जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी प्रोविजन है। अगर कोई इन सेक्शन 6, 7, 19 और 20 की वायलेशन कर रहा है, सो पनिशेबल विद फाइन फॉर द फर्स्ट ऑफेंस पर जो उसकी जो द फर्स्ट ऑफेंस उसकी जो पनिशमेंट है वो will be 250 rupees at the first, and at the second or the subsequent offense that may extend to the 500 rupees and 3 month imprisonment or both. तो सिंपल मीन ये है अगर कोई बंदा जिस तरह सबसेक्शन 1 में हमने डिस्कस किया कि इंस्पेक्टर को फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो फिर उसको जो है 50 to 250 रुपीज़ जो है फाइन वो कर सकता है अथॉरिटी। अगर कोई सेक्शन 6, 7, 19 और 20 की वायलेशन कर रहा है तो फर्स्ट ऑफेंस पर जो है उसे 250 रुपीज़ फाइन कर सकता है, एंड द सेकंड ऑफेंस 3 month imprisonment as well 500 rupees fine on both. While subsection 3 में फिर ये है कि अगर कोई बंदा है whoever contravene any other provision of this ordinance shall, अगर कोई और बंदा है जो कि इस ऑर्डिनेंस की इन सारी चीज़ों के अलावा जो सेक्शन 6, 7, 19 एंड 20 है या इंस्पेक्टर को फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इसके अलावा जो है किसी भी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस उसकी वायलेशन कर रहा है तो उसे जो है 150 रुपीज़ जो है उसे फाइन कर सकता है, जो कि द फर्स्ट ऑफेंस होगी, और सेकंड ऑफेंस और सब्सिक्वेंट ऑफेंस जो है दैट विल बी द 250 रुपीज़ और 3 month imprisonment or both. Now let's proceed toward the section 20. This is regarding the procedure. So no prosecution under this ordinance or any rules made thereunder shall be instituted except with the rules and sanction of the inspectors. Mean recognizes करने वाला कौन होता है, इंस्पेक्टर और अदर ऑफिसर और अथॉरिटी जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इन दिस बिहाफ में अपॉइंट की हो। तो सिंपल मीन ये है कि इंस्पेक्टर और अथॉरिटी या कोई और ऑफिसर जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया गया हो कि इस ऑर्डिनेंस की जो प्रोविजन है उसके हवाले से देखे, सो मोस्टली प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करती है। सेक्शन 45 में हमने डिस्कस किया कि एक चीफ इंस्पेक्टर होता है पूरे प्रोविंस के लिए, फिर जो है डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर होता है जिसका काम होता है डिफरेंट जो एरियाज है उसके साथ उसमें जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है उसे रजिस्टर करना। फॉर्म ए एम्प्लॉय जो है वो फिल करता है, फॉर्म बी जो है एक रजिस्टर उसमें जो उसका नाम वगैरह जो फर्दर डिटेल है वो होती है, और सी में जो है
वो एक सर्टिफिकेट देता है एम्प्लॉय को। और इस तरह जो है एक और इंस्पेक्टर भी होता है जो कि एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो सिंपल मीन ये है कि कोई भी बंदा जो है इंस्पेक्टर या ऑफिसर या और अथॉरिटी के अलावा जो है कोई भी बंदा इस ऑर्डिनेंस के जितने भी रूल्स है उसकी कग्नाइजेंस नहीं कर सकता, मतलब उसे उसकी जान पड़ताल नहीं कर सकता कि ये इस एक्ट या इस सॉरी आइन जो है कि कोई भी बंदा जो है इस एक्ट की वायलेशन, इस ऑर्डिनेंस की जो प्रोविजन है इसकी वायलेशन तो नहीं कर रहा। नो कोर्ट इंफीरियर, और जो है एटलीस्ट अगर कोई कोर्ट जो है वो इंक्वायरी कर रहा है सो दैट मस्ट बी लास्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। सो 28 का सिंपल मीन्स ये है कि कग्नाइज एन ऑफेंस कौन कर सकता है, या तो इंस्पेक्टर या ऑफिसर या अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट की हो। सब सेक्शन 2 में ये है कि एटलीस्ट जो है जो कोर्ट होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, उससे कम वाली जो रैंक है वो नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 21 जो है इसमें लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन है। नो कोर्ट शैल टेक कग्नाइज एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस, जो कि सिंपल मीन लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन का ये है कि एक अफेंस हुआ हो और वो इंस्पेक्टर के नॉलेज में आ गया हो तो विद इन 3 मंथ जो है एक कोर्ट को जो है वो एक केस को ले सकता है और फिर उसे देख सकता है। और इस 3 मंथ के अलावा जो है एक अफेंस हुआ है और वो इंस्पेक्टर के जो नॉलेज है उसमें आ गया हो, सो फिर वो विद इन 3 मंथ अगर कोई बंदा जो है एक अपील कर सकता है कोर्ट को, जो कि हमने सेक्शन 28 में डिस्कस किया कि वो एटलीस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, तो वो उसको अपील कर सकता है लेकिन विद इन 3 मंथ्स। इसके अलावा कोई भी कोर्ट जो है वो उस कैंसल को जो है कॉग्नाइज इन ऑफेंस वो नहीं करेगा। सेक्शन 30 में फिर इंडेमनिटी है कि अगर कोई बंदा गुड फेथ में काम करता है सो नो सूट्स प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग शुड लाई अगेंस्ट दैट पर्सन, कि अगर कोई बंदा जो है गुड फेथ में काम कर रहा है सो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग उस बंदे के खिलाफ नहीं होगी। सेक्शन 31 में डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, इसमें ये है कि गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑब्लिगेटेड to delegate all या any of its power to subordinate authority or agencies। सिंपल मीन ये है फिर कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अपनी ऑल और सम ऑफ इट्स पावर जो है वो दे सकती है किसी भी सबॉर्डिनेट या इवन किसी और एजेंसीज को। सेक्शन 32 में फिर पावर टू मेक रूल्स है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट जो है इस ऑर्डिनेंस की प्रॉपर जुरिडिक्शन के लिए जो है डिफरेंट रूल्स बना सकती है जिस तरह के रूल्स है। सब सेक्शन 2 में जो है and making rule under this section government may direct that any person committing breach, फिर ये है कि गवर्नमेंट जो रूल्स बनाएगी वो एटलीस्ट ये होनी चाहिए कि जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया पेनल्टीज में कि अगर कोई बंदा फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इंस्पेक्टर को तो उसके लिए एक स्पेसिफाइड फाइन है। फिर जो है वो सेक्शन 6, 7, 19, 20 की वायलेशन कर रहा है तो उसके लिए भी एक स्पेसिफाइड फाइन है। फिर कोई और प्रोविजन है इस ऑर्डिनेंस की उसकी वायलेशन कर रहा है सो फॉर दैट एक स्पेसिफाइड फाइन है। सो जो एवरी डेज वो फाइन कर रहा है फिर 10 रुपीज़ जो है फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ब्रीच उसने किया हो। सो फिर हर दिन जो है 10-10 रुपये वो ऐड होंगे एंड द फर्स्ट एक्सटेंड द फाइन शुड बी 50 रुपीज़। Section 33 में फिर ये है saving of certain rights and privileges. Nothing in this ordinance shall affect any rights or privileges to which an employee is entitled on the date of the commencement of this ordinance or under any law। तो सिंपल मीन ये है कि अगर एक एम्प्लॉय को जो है कोई अवार्ड एग्रीमेंट सेटलमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है कुछ राइट्स दिए गए हो और वो इस ऑर्डिनेंस की जो प्रोविजन है उसकी वायलेशन नहीं कर रहे हो और वो एम्प्लॉय के राइट्स हो सो दैट विल बी वैलिड। और सेक्शन 34 जो कि लास्ट है रिपील एंड सेविंग, इसमें ये है कि द सिंध शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1940 ये भी रिपील हो चुकी है। अब इसकी कुछ है कोई वीडियो नहीं है। द पंजाब ट्रेड एम्प्लॉय एक्ट 1940 भी जो है ये रिपील हो चुकी है। एंड फिर जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्रेड एम्प्लॉय एक्ट 1947 जो कि NWFP ये भी है रिगार्डिंग द केपीज, ये भी जो है रिपील हुई है। सिंपल मीन ये है कि इस जो डिफरेंट एक्ट है या रूल्स है या ऑर्डिनेंस है इसकी जो प्रोविजन है अभी एप्लीकेबल नहीं है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस वेस्ट पाकिस्तान शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1969। इस तरह जो वीकली हॉलीडेज एक्ट 1942 है ये भी रिपील है।
Subsection 2 में फिर ये है कि notwithstanding the repeal of the said act, everything done, order passed, action taken, obligation, liability, etc. अगर किसी बंदे को जो है पर्सन अथॉराइज जुरिसडिक्शन या पावर की गई हो if not inconsistent with the provision of this ordinance, सिंपल मीनिंग है कि अगर कोई बंदे के साथ जो है कोई एक्शन की गई हो किसी के खिलाफ या इवन कोई ऑर्डर पास किया हो और वो इस ऑर्डिनेंस की जो प्रोविजन है इसकी वायलेशन नहीं है, so they will be valid. So this was all regarding the West Pakistan Shops and Establishment Ordinance 1969. I hope that you will understand this video tutorial and you will properly now can distinguish and study this ordinance in a very proper and secure way. So thank you all once again. In the upcoming video, I will discuss and detail the rules of this ordinance, that is the West Pakistan Shops and Establishment Rules 1969. So till that, thank you all for your time. Stay blessed and take care of yourself.